Very good morning, students. Today I will teach you a new topic. Name is cell division. Okay, let us start with the definition of cell division. Okay, cell division means it is a process in which a parent cell, or we can say there is a mother cell, which gets divided into two daughter cell, or more than two daughter cell. If mother cell is divided into two daughter cell, it is known as mitosis. Okay, means cell division in eukaryote. It is a two type. One is mitosis, second is meiosis. Okay, when a mother cell or parent cell is divided into two daughter cell, then it is mitosis. Okay, when mother cell gets divided into four daughter cell, that is haploid cell or gametic cell, that it will known as meiosis. Okay, and mitosis word is given by Fleming, and meiosis word is given by Farmer and Moore. Okay, in this slide you can see in the diagram, in which is in left side, there is a three type of the cell division I am shown. The first is binary fission, second is mitosis, and third is meiosis. When you will see the binary fission, it is happened in the prokaryotic cell. For example, bacteria and archaebacteria. Okay, bacteria and archaebacteria, these are the prokaryote. So this binary fission is happened in prokaryotic cell, in which what is happened, there is a bacterial cell. Okay, first is in first diagram, you see in the top portion there is a bacterial cell. In the bacterial cell there is a DNA which is shown in green color. Okay, this DNA will multiplicate, means the DNA will replicate, and it will form two copies of its DNA. Okay, then there is a two DNA will form. Then what will happen, then the bacterial cell will divide into two parts. Then after these replicated DNA equally transferred into each bacterial cell. So that is the binary fission. In general, in layman language, you can understand that suppose this is the bacteria, it's divided into two bacterial cells, and each bacterial cell contain equal amount of the DNA. So that is a binary fission. And second is the mitosis. Mitosis generally happen in the somatic cell, or we can say vegetative cells, but meiosis happened in reproductive cells. Okay, or germ cells. Or when the meiosis will happen in the reproductive cell, always it will get always it will gives you haploid cells or gametic cells. Okay, so that is the meiosis. But in case of mitosis, the cells which is resultant of mother cells after the cell division, that will be diploid. I mean, it is the same DNA, same chromosome number as mother cell or parent cell. So that is the meiosis. But in case of meiosis, and that is in mitosis, but in case of meiosis, it always haploid cells. Okay, so this is the mitosis. माइटोसिस में आप समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है, डिप्लॉयड सेल्स हैं. डिप्लॉयड सेल्स एस फेज होती है. एस फेज में डुप्लीकेशन होता है क्रोमोसोम का. एस का मतलब होता है सिंथेसिस फेज. ओके, विच इज़ द पार्ट ऑफ इंटरफेज. तो फिर क्या होता है, इंटरफेज कंप्लीशन होने के बाद में फिर आता है एम फेज. एम फेज में फिर चार फेज होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. ओके, तो प्रोफेज के अंदर क्रोमोसोम कंडेंसेशन होता है. फिर क्रोमोसोम कंडेंस होके जो मेटाफेजिक प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट होती है, या बिल्कुल एक सेंटर पार्ट होती है सेल्स का, वहां जाके सारे के सारे क्रोमोसोम लाइन अप होते हैं. फिर एनाफेज के अंदर अपोजिट पोल पे मूवमेंट होता है. फाइनली साइटोकाइनेसिस से दो सेल का क्या बोलते हैं निर्माण हो जाता है. ठीक है, तो ये माइटोसिस में होता है. मियोसिस के अंदर जो मियोसिस दो पार्ट्स होते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड. ओके, तो मियोसिस जो फर्स्ट होता है वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर, एक जो मेन प्रोसेस है मियोसिस फर्स्ट के अंदर, वो क्रॉसिंग ओवर, विच इज प्रोड्यूस द डिफरेंट काइंड्स ऑफ
क्रोमोसोम और ऑर्गेनिज्म और व्हाट यू विल से द गैमेट्स। ओके, तो ये मियोसिस फर्स्ट में, इसको सभी को हम अभी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आप डायग्राम में देखिए, ये एक प्रकार का इंटर फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप से ली हुई इमेज है, जो इसमें क्या सेल डिवीजन चल रहा है कंटिन्यूसली। मतलब ये एक प्रकार की फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप है, जिसके अंदर जो अंदर जो सेल के अंदर कौन सी रिएक्शन चल रही है, क्या मेटाबॉलिज्म चल रहा है, उसको आप स्टडी कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। तो उसका ये डायग्राम है, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं, तो पहले ही आपको मैं बता चुका हूँ कि प्रोकैरियोट जैसे कि बैक्टीरिया और आर्किया, जिसके अंदर जो उनकी वेजिटेटिव सेल है वो बाइनरी फिशन के थ्रू डिवाइड हो जाती है इंटू टू डॉटर सेल, ठीक है। और ये डॉटर सेल जो मतलब कि डीएनए कंटेंट रखेगी, इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए, ठीक है ना। और कई बार अनइक्वल भी हो सकता है, ठीक है। और कई बार इसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर बडिंग भी होती है, यानी कि एक बल्ब होता है और एक बल्ब से दूसरा बल्ब निकला, दूसरे से तीसरा चौथा, ऐसे बल्ब निकलते रहते हैं, है ना। फिर एक बैक्टीरिया की स्पेशल टाइप स्ट्रक्चर बनती जाती है, जो उनकी शेप्स के अकॉर्डिंग डिवाइड भी कर रखा है कि स्टेप्टोकोकस, मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, ऐसे स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है इसके अंदर। अब माइटोसिस से हम स्टडी करते हैं, जो कि अपना मेन टॉपिक है। माइटोसिस और दूसरा मियोसिस, उसको थोड़ा सा डिटेल में हम देखेंगे। तो माइटोसिस में क्या है, आपको पहले ही बता चुके। तो माइटोसिस क्या है, मदर सेल होती है, वो डिवाइड होती है टू डॉटर सेल के अंदर, और दोनों डॉटर सेल्स इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए रखेगी। मतलब कि जैसे 2n क्रोमोसोम राइस के लिए 24 होता है, तो अब 24 का क्या होगा, डबलिंग होती है फिर, और डबलिंग होके 24 आफ्टर द सेल डिवीजन डॉटर सेल के अंदर इक्वली ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है ना। और ये माइटोसिस जनरली वेजिटेटिव सेल में होता है, ओके। अब इसका डायग्राम देखिए माइटोसिस का। माइटोसिस के अंदर दो फेज है, ठीक है। एक इंटरफेज होती है, दूसरी एम फेज होती है। अब इंटरफेज डिवाइड होती है G1 S और G2 फेज में। तो G1 जो फेज होती है, यहाँ पे आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ठीक है। और एस फेज के अंदर डीएनए मल्टीप्लिकेशन होता है, और G2 फेज के अंदर एटीपी वगैरह रिक्वायरमेंट, एटीपी का सिंथेसिस होता है, जो कि विच इज हेल्प टू प्रोवाइड द एनर्जी फॉर द सेल डिवीजन। मतलब एनर्जी देता है सेल डिवीजन के लिए, वो G2 फेज के अंदर होता है। और ट्यूबुलिन प्रोटीन वगैरह भी बनता है वहाँ पे। और एस फेज में बता दें, डीएनए मल्टीप्लिकेशन होता है, वहाँ पे डीएनए डबल होता है ना। वो डीएनए डबल होके ही फिर डॉटर सेल के अंदर वो पहुँचता है, ठीक है। तो ये चीज़ है इसके अंदर इंटरफेज। फिर प्रोफेज में कंडेंसेशन होता है, क्रोमोसोम बिल्कुल कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस होने के बाद मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज यानी कि इसके अंदर जो क्रोमोसोम है एक सीधी लाइन में आ जाएंगे। आप डायग्राम में देखेंगे तो क्रोमोसोम पूरे एक सीधी लाइन में आ गए हैं। एक इक्वेटोरियल प्लेट होती है ना, या मेटाफेजिक प्लेट भी बोलते हैं। उस इक्वेटोरियल प्लेट पे पूरे का पूरे क्रोमोसोम लाइन अप हो जाते हैं। फिर एनाफेज के अंदर क्या होता है, जो नेक्स्ट जो फेज है, एम फेज की जो थर्ड फेज है, वो एनाफेज है। यानी कि 4 फेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब जिसके अंदर एनाफेज के अंदर क्या होता है, अब क्रोमोसोम पहले तो क्रोमोसोम कंडेंस हो गए, एक लाइन के अंदर आ गए। लाइन में आने के बाद अब ये क्रोमोसोम सेपरेट होंगे एक दूसरे से अपोजिट पोल पे। और इनको सेपरेट करने के लिए क्या होता है, एक सेंट्रियोल होता है। सेंट्रियोल से माइक्रोट्यूबुल्स निकलते हैं। वो माइक्रोट्यूबुल्स हर क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है, वहां से सेंट्रोमियर पे भी एक्चुअली वो कनेक्ट नहीं होते, वहाँ पे एक काइनेटोकोर प्रोटीन होती है। उस काइनेटोकोर प्रोटीन से वो माइक्रोट्यूबुल्स अटैच होते हैं। वो अटैच होके फिर अपोजिट पोल पे क्रोमोसोम मूवमेंट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे पूरा का पूरा जो जो मतलब क्रोमेटिड है, वो पूरा पूरा मूवमेंट करता है, ठीक है। और यहाँ पे मतलब कि जो क्रोमेटिड यानी कि जो मतलब क्रोमोसोम आपस में से दो क्रोमोसोम जुड़े हैं, तो दोनों के दोनों क्रोमोसोम दूर हो जाएंगे, दोनों के दोनों क्रोमेटिड। मतलब पहले तो ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, पहले ये क्रोमोसोम होता है, ये डुप्लीकेशन से दो क्रोमोसोम है ना, होमोलॉगस कॉपी एक दूसरे के ये। अब बाद में सेंट्रोमियर से यहाँ पे ये जुड़ेगा, फिर बाद में ये धीरे धीरे अलग अलग होने लग जाएंगे एनाफेज के अंदर। और टीलोफेज के अंदर क्या होगा, जो फोर्थ फेज है, फाइनल फेज है। अब ये जब क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे पहुंच गए, एक दूसरे से दूर दूर हो गए, तो अब क्या होगा, एक फरो बनना स्टार्ट होगा बीच में। मैं मतलब कि अब ये जो सेल अब डिवाइड होना है, तो डिवाइड होने के लिए क्या होगा,
इन जो दोनों सेल है उसके बीच में यही ये सेल है, तो एक फ्रो बनना स्टार्ट होता है। तो अब ये फ्रो बनना स्टार्ट होता है तो दोनों दोनों सेल एक दूसरे से फिर दूर होती रहती है और फाइनली दोनों सेल एक दूसरे से अलग हो जाती है और इस प्रोसेस को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, यानी कि साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो जाता है ना। बाद में वो न्यूक्लियस भी पूरा तरह से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आ जाती है, क्रोमोसोम डीकंडेंसेशन भी स्टार्ट हो जाता है ना। सेंट्रियोल भी आपके गायब हो जाएंगे टीलोफेज का जो होती है लास्ट फेज है उसमें, और साइटोकाइनेसिस से फिर पूरा साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा और 2 डॉटर सेल आपको मिल जाएगी विच इज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये आपका माइटोसिस ऐसे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। क्रोमोसोम पहले तो क्या क्रोमेटिन की तरह से ऐसे ही पड़े रहते, धागा नुमा स्ट्रक्चर होती है, फिर वो कंडेंसेशन होता है, ठीक है। कंडेंसेशन प्रोफेज में होता है, मेटाफेज में मेटाफेजिक प्लेट पे आ जाएंगे, एनाफेज में अपोजिट पोल पे चले जाएंगे, टीलोफेज के अंदर साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से आ जाएगी, क्रोमोसोम डीकंडेंसेशन अभी स्टार्ट हो जाएगा, फिर साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, दोनों डॉटर सेल अलग अलग हो जाएगी साइटोकाइनेसिस। तो ये माइटोसिस होता है, ठीक है। अब ये माइटोसिस जो होता है इसमें जो साइटोकाइनेसिस जो प्रोसेस आपको मैंने बताई थी लास्ट के अंदर, जब टीलोफेज कंप्लीट हो जाती है, तो अब एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर ये अलग अलग होता है। एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, पूरी की पूरी तरह मतलब कि सेंट्रीपिटल होता है एक्चुअल में। ये सेंट्रीपिटल यानी कि ये सेंटर है, सपोज ये सेंटर है, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा बाहर की तरफ से, बाहर से अंदर की तरफ एक फरो बनना स्टार्ट होगा, ठीक है। नीचे से भी ऐसे होगा, यानी कि दोनों तरफ ऐसे फरो बनना हो जाएगा, फिर ये पूरा फरो बन जाएगा, फिर दोनों को दोनों सेल अलग हो जाएंगी। तो ये एनिमल सेल के अंदर ऐसा होता है, ठीक है ना। दोनों जब डॉटर सेल को डिवाइड करना होता है तो वो जो फरो है वो किस टाइप से बनता है, सेंट्रीपिटल होता है, सेंट्रीफ्यूगल होता है। सेंट्रीपिटल यानी सेंटर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल यानी सेंटर से दूर, अवे अवे फ्रॉम द सेंटर, है ना। तो वो सेंट्रीफ्यूगल होता है। अब इसमें जो प्लांट सेल इसमें सेंट्रीफ्यूगल होता है, यानी बीज से फ्रो बनना स्टार्ट होता है। प्लांट सेल में क्या बीज से फ्रो बनना स्टार्ट हो गया, यहाँ है सेंटर, अब यहाँ से फ्रो बनेगा, यहाँ से फ्रो बनना स्टार्ट होगा, ऐसे से अवे फ्रॉम दी सेंटर या टुवार्ड्स दी, मतलब कि जो एंड होगा उसका बॉर्डर की साइड ये जाएगा सेल के, सेल वाल की तरफ, ठीक है ना। तो ये साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल में से होता है, एक बीज से हो रहा है, एक बीज की तरफ जा रहा है, एक बीज से सेंटर से दूर की तरफ जा रहा है। तो ये साइटोकाइनेसिस में डिफरेंस है एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर। अब पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माइटोसिस। एक सीधी सी बात है कि जब भी हमको रीजनरेशन करना है, कोई घाव वगैरह बन गए बॉडी पे, उसको रिपेयर करना है, रीजनरेट करना है, तो माइटोसिस वहाँ होता है, ठीक है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे जैसे बनाना हो गया, ठीक है ना। और बहुत सारे जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, जो मतलब प्लांटेशन क्रॉप्स होती है, या पोटैटो हो गया, तो पोटैटो वगैरह इन सभी में क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही चलता है। तो वहाँ पे आप डायरेक्ट, वहाँ पे केवल माइटोसिस होता है। कोई भी आप बडिंग हो रही है जहाँ पे कटिंग काम में ले रहे हैं, और उस कटिंग को आप जैसे रोज में कटिंग काम में लेते हो, तो उसकी जो कलम है उस कलम को डायरेक्ट कहीं लगा देते हैं, तो वो पूरी तरह से कंप्लीट प्लांट बना देता है। तो वहाँ पे तो कुछ गैमेट वगैरह नहीं बन रहे, वहाँ तो केवल सेल डिवीजन, वहाँ तो केवल एक सेल डिवीजन ही चल रहा है, ठीक है। वहाँ तो एक सेल डिवीजन ही चल रहा है। अब वो जो सेल डिवीजन है किस टाइप का, वहाँ पे वो माइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन चलता है। और यहाँ और दूसरा है क्या, नंबर ऑफ इंक्रीज करना सेल का, बहुत सारी सेल्स बन जाती है, मास प्रोडक्शन ऑफ सेल का करना है, क्लोन प्रोपोगेशन करना है, तो वो माइटोसिस ही होता है, ठीक है। पर हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, उस ह्यूमन बॉडी में लगभग 5 × 10⁹ सेल्स रिपेयर होती है पर डे इन थ्रू माइटोसिस, मतलब बहुत ज़्यादा हो गई है, मतलब बिलियन सेल ऑफ रिपेयर हो रही है। ये माइटोसिस का इम्पोर्टेंस है। अब मियोसिस क्या होता है, अब मियोसिस में क्या होता है, क्या है कि वेन मदर सेल्स डिवाइड इनटू 4 हैप्लोइड सेल्स, तो वो मियोसिस होता है, यानी 1 मदर सेल 4 हैप्लोइड सेल, तो वो मतलब वो मियोसिस है, ठीक है। इससे जो एग है, स्पर्म सेल्स है, वो सारे या गैमिट है, वो मियोसिस के थ्रू ही प्रोड्यूस होते हैं। और ये मियोसिस हमेशा कहाँ होता है, जर्म सेल या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। और पर्पज क्या है,
पर्पज का है कि जो आपका क्रोमोसोम जो मेंटेन रहता है आपका, तो मतलब कि सपोज कोई गैमेट बन गए, हाफ ऑफ क्रोमोसोम हो गए, अब प्लांट जो कंप्लीट जाइगोट बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद में, फिर उससे कंप्लीट एम्ब्रियो सीड बनेगा, फिर प्लांट बनेगा, तो अब उसमें क्रोमोसोम को मेंटेन कैसे होगा, वापस से वो 24 राइस के अंदर 24 होते हैं, 12 क्रोमोसोम गैमेट्स में, एगो स्पर्म के अंदर वापस से 24 क्रोमोसोम कैसे बनेंगे, तो वो फिर फर्टिलाइजेशन से होगा, है ना। तो अब ये क्रोमोसोम को वापस से मेंटेन करने का तरीका है ये, है ना, टू मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और दूसरा है कि क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है कि आपके अंदर जो पॉपुलेशन के अंदर या कोई भी जो जेनेटिक वेरिएशन आप देख रहे हैं इस एनवायरनमेंट के अंदर, तो वो वेरिएशन कहाँ से है, वो एक सोर्स है वेरिएशन का, वो क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसके अंदर क्या होता है, जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, ठीक है, तो उसको क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। क्रॉसिंग ओवर के अलावा इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट भी होता है, म्यूटेशन होता है, पॉलीप्लॉइडी भी होता है, ट्रांसजेनिक भी है, बहुत सारी है, ट्रांसपोसोम भी होता है, तो वो इसके अलावा भी एक वेरिएशन क्रिएशन होता है, म्यूटिक ड्राइव भी है ना, वेरिएशन क्रिएशन के लिए, ठीक है। अब मियोसिस दो टाइप का होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट को क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन होता है, यानी कि पूरा का वहाँ पर तो सिस्टर क्रोमेटिड डिवाइड हो गए थे माइटोसिस के अंदर, अब यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड डिवाइड नहीं होता, पूरा का पूरा सिस्टर क्रोमेटिड अपोजिट पोल पर मूवमेंट करता है, ठीक है ना। और फिर बाद में जो मियोसिस सेकंड होता है, आप डायग्राम में देखेंगे तो मियोसिस सेकंड के अंदर जो सिस्टर क्रोमेटिड है अब वो डिवाइड होंगे यहाँ पे मियोसिस सेकंड के अंदर। मियोसिस फर्स्ट के अंदर होल सिस्टर क्रोमेटिड ही मूवमेंट होता है, और मियोसिस सेकंड के अंदर फिर वो सिस्टर क्रोमेटिड डिवाइड होगा अपोजिट पोल पर, ठीक है। तो ये मियोसिस है। मियोसिस की दो स्टेज है, मियोसिस जो फर्स्ट है वो फिर अगेन वो 5 टाइप से होता है, मतलब 4 तो फेजेज है, एक साइटोकाइनेसिस हो गया, और मियोसिस सेकंड में भी वैसे ही है, 4 फेजेस हो गए और एक साइटोकाइनेसिस हो गया। तो मियोसिस जो फर्स्ट है वो 4 टाइप का हो गया, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट और साइटोकाइनेसिस, और फिर है इंटरकाइनेसिस, और फिर मियोसिस सेकंड, अगेन प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सारा सेकंड सेकंड आएगा, और फाइनली साइटोकाइनेसिस। जो सबसे मतलब कि जो इसकी प्रोफेज होती है मियोसिस की, वो बहुत बड़ी लॉन्ग होती है, क्योंकि जो प्रोफेज है वो भी डिवाइड हो रखी है, लेप्टोटीन, पेकाटीन, पहला आती है लेप्टोटीन, जाइकोटीन, पेकाटीन और डिप्लोटीन, डायोकाइनेसिस, तो ये प्रोफेज के अगेन इसके टाइप्स होते हैं, ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो जो मेटाफेज है मियोसिस का और माइटोसिस का, जो मेटाफेज है वो अलग अलग होता है ना। इनका जो लाइनअप है क्रोमोसोम का वो अलग है। माइटोसिस में तो क्रोमोसोम एकदम ऐसे लाइनअप हो जाते हैं, ये क्रोमोसोम है, सपोज ये क्रोमोसोम है, ये ऐसे लाइनअप हो गए, ऐसे ऐसे लाइनअप हो गए। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, ये क्रोमोसोम यहाँ, ये क्रोमोसोम यहाँ पे, ऐसे लाइनअप होते हैं, अलाइनमेंट ऐसे होता है मियोसिस में, और माइटोसिस में ऐसे होता है, मियोसिस ऐसे, माइटोसिस ऐसे। तो इस हिसाब से ये डिफरेंस है एक मियोसिस और माइटोसिस के अंदर। बाकी तो प्रोफेज में तो सेम चीज़ें चलती है, मतलब वही कंडेंसेशन होता है यहाँ पे, कंडेंसेशन होके बुके टाइप की स्ट्रक्चर बनती है, क्रॉसिंग ओवर होता है, फिर वो अलग अलग हो जाते हैं। मेटाफेज में लाइनअप ऐसे होता है क्रोमोसोम का, एनाफेज में दूर चले जाएंगे, टीलोफेज में ऐसे वो फरो बनना स्टार्ट हो जाएगा, प्लांट है तो बीज से बनेगा, एनिमल है तो सेंटर की तरफ से बनेगा, मतलब कि बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। साइटोकाइनेसिस से 2 सेल्स बन जाएगी, फिर मियोसिस सेकंड के अंदर वैसे ही वापस से डीकंडेंसेशन जो हो रखा, तो वापस से रिकंडेंसेशन होगा, मेटाफेज पे आएंगे सिस्टर क्रोमेटिड। अब मेटाफेज के अंदर सिस्टर क्रोमेटिड की पोजीशन इस टाइप से होगी, फिर अपोजिट पोल पे मूवमेंट होगा, 2 सेल्स बन जाएगी। आप इसे डायग्रामेटिकली देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इंटरफेज हो गई, इंटरफेज में वही G1 S, G2 फेज, आरएनए बनेगा, आरएनए प्रोटीन बनता है G1 के अंदर, S के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन, G2 के अंदर एटीपी और कुछ ट्यूबुलिन प्रोटीन भी बनती है, वो इंटरफेज में होता है। फिर प्रोफेज फर्स्ट आती है, प्रोफेज फर्स्ट के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाएगी, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन का होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम इस टाइप से लाइनअप होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्रोमोसोम का लाइनअप इस टाइप से होगा, ठीक है। फिर लाइनअप होने के बाद में फिर मूवमेंट होगा अपोजिट पोल पे एनाफेज के अंदर फर्स्ट में,
और टेलोफेज के अंदर फरो बनेगी और साइटोकाइनेसिस से दो सेल्स बन जाएगी। लेकिन जो यहाँ पे एनाफेज के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है पूरा पूरा सिस्टर क्रोमेटिड ही अपोजिट पोल पे मूवमेंट हो गया था। ठीक है, तो प्रोफेज जो सेकंड होगी अभी यहाँ पे अब पूरा पूरा सिस्टर क्रोमेटिड है दोनों के अंदर। अब यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो आधे नहीं हुआ है, जैसे इंटरफेज या आप बोलते हैं कि 24 क्रोमोसोम है, राइस की ये सेल है। तो अब प्रोफेज सेकंड के अंदर भी 24 ही क्रोमोसोम है, 24 ही है ना। और मेटाफेज के अंदर यदि पूछ ले तो कितने क्रोमोसोम, यहाँ पे 24 का डबल है, प्रोफेज में भी डबल है क्योंकि एस्पेस में 24 का डबल हो गया था, है ना। 24 का डबल के 48, तो 48 होंगे, मेटाफेज में 48, एनाफेज में भी इतने ही होंगे, ठीक है ना। और टेलोफेज के जो लास्ट हो गए साइटोकिनेसिस होने के बाद में फिर 24 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर मेटाफेज पे क्रोमोसोम का लाइनअप ऐसे होगा, एनाफेज में दूर दूर चले जाएंगे, यानी कि अभी कितना हो जाएगा 24 का हाफ हो जाएगा, 12 क्रोमोसोम, ठीक है। 12 क्रोमोसोम अब एक पोल पे जाएंगे, 12 क्रोमोसोम दूसरे वाले पोल पे जाएंगे, फिर टेलोफेज में एक फरो बनेगा और फिर फरो बनने के बाद में साइटोकाइनेसिस से दो सेल बन जाएगी ईच सेल से, ठीक है ना। तो प्रोफेज से आप दो सेल देख सकते हैं, एक सेल ऊपर एक सेल नीचे, ठीक है ना। तो यहाँ पे यहाँ पे 4 हैप्लोइड गैमेटिक सेल्स बन गई है और हर सेल के अंदर आधे क्रोमोसोम है, आधे यानी कि जैसे शुरू के अंदर इंटरफेज के अंदर और जो राइस की सेल थी उसमें 24 क्रोमोसोम थे, तो फाइनली हैप्लोइड गैमेटिक सेल है कितना हो जाएगा 12 हो जाएंगे। तो सारे के जो चारों सेल है सभी में 12 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है ना। तो ये है अब ये फाइनली मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है। माइटोसिस आपको पता है कि सोमेटिक सेल में होता है, ये जनरेटिव सेल या मतलब क्या होता है रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। और माइटोसिस में डिप्लॉइड सेल्स ही बनती है, इसमें हैप्लॉइड सेल्स बनती है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, और सभी माइटोसिस सभी ऑर्गेनिज्म में होता है एक्सेप्ट वायरसेस, ठीक है। और ये मियोसिस तो ये रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होता है, ये भी यूकैरियोट में भी होता है ना। और ठीक है ना, इसकी जो प्रोफेज है माइटोसिस की वो शॉर्ट होती है और मियोसिस की जो प्रोफेज है वो थोड़ी लॉन्ग होती है क्योंकि वो डिवाइड है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। इसके अंदर लेप्रोटीन, जाइगोटीन, पेकाटीन और डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस भी होती है। और मेटाफेज के अंदर जो क्रोमोसोम है वो पेयर के रूप में लाइनअप होते हैं, ये जैसे दो पेयर है, ये पेयर ऐसे ऐसे लाइनअप होंगे, ठीक है। लेकिन मियोसिस में इस टाइप से लाइनअप होते हैं क्रोमोसोम, ठीक है ना। इसके अंदर पूरा पूरा सिस्टर क्रोमेटिड मूवमेंट होता है माइटोसिस में। इसमें बाद में जो सिस्टर क्रोमेटिड जो मियोसिस सेकंड है उसमें वो अलग अलग हो जाएगा, एक सिस्टर क्रोमेटिड ऊपर जाएगा, दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड नीचे जाएगा, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है इसके अंदर। आप और इस स्लाइड को एक बार और देख लेना, और फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आए तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एंड यू कैन मैसेज मी, ओके, इन यूट्यूब और आल्सो इन टेलीग्राम चैनल। ओके, थैंक यू सो मच।